Assalamualaikum students. Hope you all are fine. Students, you know that second term started and this is our very first lecture of second term of English for grade 6 and the topic is Home Sweet Home. Students, you have to open your textbooks of English. I am going to read this unit for you. This is the textbook of English for grade 6. And this is unit number 7, Home Sweet Home. Words to know. First word is accompaniment. Accompaniment, music that is played with someone who is playing the main tune. Music जो already कोई play कर रहा है उसके साथ मिल के play करना. Adorn, decorated, beautified. Aghast, struck by horror and amazement. हैरान रह जाना, खौफजदा रह जाना. Ambled, stroll, walk slowly, आहिस्तगी से चलना. Disbelievingly, in a manner suggesting a refusal to believe, किसी बात पे यकीन ना आना, गैर यकीनी की कैफियत. Emerge, came out of, came into view. Embers, small pieces of glowing wood or coal in a drawing fire. Small pieces of burning coal, कोल के कोयला के छोटे छोटे जलते हुए टुकड़े. Fallen me, sadly, wretchedly and desperately. Irritable, easily irritated or annoyed. Jangling, a harsh metallic sound. Jovially, marked by heartily good cheer, cheerfully. खुशदिली से, cheerfully, खुशगवार, खुशगवारी से. Muffle, to stifle, to deaden. Percussion, a section of an orchestra consisting of instruments that can be struck such as drums, tambourines. Percussion mean section of an orchestra consisting of instruments. Orchestra जिसमें बहुत सारे instruments जो हैं वो होते हैं that consist of जिन्हें play किया जाता है such as drums and tambourines etc. Scuttled, ran hurriedly. Snorting, making a sound by forcing air through the nostrils quickly. Breathing noisily. Snorting, harate lena. Tambourine, again a musical instrument consisting of a drum head and a small metal disc fixed in the sides. Turmoil, confusion, in a state of upheaval. Disturbance. Now I am going to read this. Anton Lona, Janko shouted angrily to his son and daughter. Janko shouted angrily, गुस्से से Janko चिल्लाया to his son and daughter, whose names were Anton and Lona. Stop beating that drum. इस drum को बजाना बंद करो and clanging that tambourines. Stop beating that drums and clanging that tambourines. Put them away in your cupboard. ये drum और tambourine जो है again it's a small hollow drum. इन्हें बजाना बंद करो. Put them away in your cupboard. इन्हें अपनी cupboard में रख दो immediately, फौरन से. And put away those other toys too before I trip over them. और दूसरे toys जो हैं उनको भी उठा के अंदर रख दो इससे पहले कि मैंने उठा के फेंक दूँ. The children looked gloomy. बच्चे उदास हो गए. However, they stopped the music and carried the instruments to their cupboard in the corner of the room. लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर भी म्यूज़िक रोक दिया और इंस्ट्रूमेंट्स उठा के अपनी कबर्ड में रख दिए रूम के कॉर्नर वाली कबर्ड में. Janko had been trying to read the newspaper and the noise of his 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him irritable. अब जैंको क्या कर रहा था? जैंको हैड बीन ट्राइंग टू न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था जब तो बच्चों के इसके 9-year-old सन 9 साल का जो बेटा है उसकी ड्रमिंग की आवाज़ और साथ उसकी बेटी उसको कंपनी दे रही थी कि वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था. साथ उसकी बेटी भी लगी हुई थी टैम्बोरिन पे. तो इससे उसको मुसलसल सरदर्द हो गया था एंड मेड हिम इरिटेबल और उसको बहुत गुस्सा आ गया था. ही वॉज अनॉयड, वो चिड़चिड़ा हो गया था. Although the drumming and jangling had stopped, अगरचे अब ये drumming और jangling again harsh metallic sound ये लाउड साउंड जो हैं आना बंद हो गई थी, म्यूज़िक प्ले करना बंद हो गया था. एंटोन एंड लोना बीइंग obedient children
एंटन और लोना ने ओबीडियंट चिल्ड्रन की तरह, फरमाबरदार बच्चों की तरह अपने फादर की बात मान ली थी और म्यूज़िक प्ले करना बंद कर दिया था. द थ्रॉबिंग इन जेंकोस टेम्पल्स कंटिन्यूड. लेकिन थ्रॉबिंग, शिवरिंग विद द एंगर, गुस्से से कांपना. इन जेंकोस टेम्पल्स द एरिया ऑन द ईदर साइड ऑफ द फोरहेड, फेस, उसके फेस जो है वो अभी तक गुस्से से वो कांप रहा था. इट फेल्ट एज इफ द, और बिल्कुल ऐसा उसे फील हो रहा था, इफ़ द परकशन सेक्शन ऑफ अ लार्ज ऑर्केस्ट्रा स्टिल प्लेड एट हिज लाउडेस्ट इन हिज हेड, कि उसके दिमाग में अभी तक जैसे ऑर्केस्ट्रा का वो सेशन जारी हो, ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक जो है उसके दिमाग में अभी तक प्ले किया जा रहा हो, हालांकि जो है वो बच्चों ने वो बजाना बंद कर दिया था. जेंको's वाइफ मोनिका इमर्ज फ्रॉम द किचन एंड इंटर्ड द लिविंग रूम. जेंको की वाइफ मोनिका किचन में से सामने आई एंड इंटर्ड द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में दाखिल हुई. मोनिका वाज स्मॉल बट द किचन टू वाज स्मॉल. अब मोनिका छोटे कद की थी, छोटी हाइट की थी, लेकिन किचन भी बहुत छोटा था. नॉट मच लार्जर दैन द कबर्ड, इतना छोटा था कि वो एक कबर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं था. शी फेल्ट शी नीडेड अ स्मॉल बिट ऑफ फ्रेश एयर. उसको महसूस हुआ कि उसे ताज़ा हवा की ज़रूरत है. शी हर्ड द शाउटिंग एंड हैड नाउ कम टू सी वट वॉज गोइंग ऑन. क्योंकि उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और अब वो ये देखने आई थी कि आखिर यहाँ क्या चल रहा था, क्या हो रहा था. वेयर सेल एल्स आर दे टू प्ले, शी चैलेंज जेंको. उसने जेंको को चैलेंज करते हुए कहा कि वो कहाँ जाके खेलें, मतलब बच्चे कहाँ जाके खेलें. एनीवेयर बट इन माई ईयर रिप्लाइड जेंको, आई हैव अ हेडेक, कि कहीं भी जाके खेलें लेकिन मेरे सर से दूर हैं, मेरे कानों से दूर हैं, क्योंकि मुझे सर में दर्द है. वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस वी हैव, सैड मोनिका. मोनिका ने क्या कहा? मोनिका ने कहा वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस, कि जितनी हमारे पास जगह है हम उसे शेयर करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि हम उसे शेयर करें, उसे बांट के हम रहें. हाउ डू यू थिंक दे फील व्हेन यू कीप देम अप ऑल नाइट विद योर स्नोरिंग. तुम्हारा क्या हाल है कि उन्हें कैसा महसूस होता होगा जब सारी रात तुम स्नोरिंग करते हो, खर्राटे लेते हो, ब्रीथिंग नॉइजली. आई वुड नॉट नो अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, सैड जेंको. जेंको ने कहा स्नॉटिंग, खर्राटे, आई एम स्लीप एट नाइट, मैं तो रात को सोया होता हूँ. सो हाउ वुड आई नो वट माई स्नोरिंग साउंड्स लाइक, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरे खर्राटों की आवाज़ कैसी होती है. वेल आई कैन टेल यू, रिप्लाइड मोनिका. मोनिका ने कहा कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ. लाइक अ बैफलो रनिंग थ्रू हेयर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई भैंस इधर से उधर भाग रही हो. द चिल्ड्रन ट्राई टू मफल देयर गिगल्स, बच्चों ने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की. मफल स्टिफल देयर गिगल्स, खिसियानी आवाज़ में, दबी दबी आवाज़ में वो हंसने लगे. आई कैन सी एंड हेयर यू वेरी वेल, सैड जेंको. जेंको ने उन्हें कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है. लुकिंग एट दैम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, और उसने देखते हुए कहा द गिगलिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली, सडनली, एकदम से, अचानक से वो हंसना बंद हो गए. एंड देन स्टार्टेड अगेन, और दोबारा शुरू हो गए. व्हेन देयर मदर विंक, जब उनकी मदर ने उन्हें विंक सिग्नल बाय विंकिंग, आंख मारना, जिसे मदर ने उन्हें आंख चिपकाई. शी सीम टू बी ऑन देयर साइड, ऐसा मालूम होता था कि वो बच्चों की साइड पे है, बच्चों की तरफ है. मोनिका शुक हर हैड, स्माइल्ड एट द चिल्ड्रन. मोनिका ने अपना सर हिलाया, बच्चों की तरफ देख के मुस्कुराया. एंड रिटर्न टू द किचन, और किचन में वापस चलेगी. एंटन टुक आउट हिज डेक ऑफ कार्ड्स, एंटन ने अपना कार्ड्स जो है उठाए. एंड सिटिंग हिमसेल्फ एट द डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल पे सीधा होकर बैठ गया. बिगेन टू शफल देम नाइजली, और उन्हें इधर उधर मूव करने लगा, उन्हें शफलिंग करने लगा. लोना फाउंड हर रैग डॉल एंड बिगेन टू टॉक टू इट ऑन द फ्लोर. लोना ने अपनी रैग डॉल, क्लॉथ डॉल, छोटी कपड़े की गुड़िया उठाई और उससे बातें करने लगी. जो व्हाट यू बीन डूइंग इन दीज डेज, शी चर्प्ड होल्डिंग द डॉल एलॉफ्ट. अब वो डॉल से बातें कर रही है और उससे कह रही है कि तुम इन दिनों क्या कर रही हो. शी चर्प्ड होल्डिंग द डॉल एलॉफ्ट, कि डॉल को उसने एलॉफ्ट अपवर्ड, पकड़ते हुए ऊपर की तरफ घुमाते हुए उससे कहा. जेंको सेड एंड ओपन हिज न्यूज़पेपर अगेन. जेंको ने एक आह भरी और दोबारा से न्यूज़पेपर खोल लिया. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर बाद, ही थ्रू इट असाइड, उसने से एक तरफ फेंका. रोज फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से उठा. एंड मेड फॉर द फ्रंट डोर, और सामने वाले दरवाजे की तरफ चला गया. दैट्स एनफ, बहुत हो गया. ही सेड लाउडली, उसने उससे ऊंची आवाज़ में कहा. ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए. मोनिका, आई एम गोइंग टू सी वाइज इवा इन द
विलेज, मैं गाँव में वाइस इवा से मिलने जा रहा हूँ। परहैप्स शी कैन हेल्प मी विद माई प्रॉब्लम, आई विल बी बेक फॉर डिनर। हो सकता है कि शायद वो मेरे मसले में मेरी मदद कर सके और मैं रात के खाने पे वापस आ जाऊँगा। बिफोर मोनिका कुड कम आउट ऑफ द किचन और रिप्लाई, इससे पहले कि मोनिका किचन से बाहर आती और कुछ जवाब देती, जेंको हैड स्टेप्ड आउटसाइड एंड स्लैम द डोर। जेंको इतनी देर में बाहर निकल गया था और उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। स्लैम क्लोज वायलेंटली द डोर, दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद किया। जेंको एम्बल टूवर्ड्स द विलेज, अब वो आहिस्ता से चलता गाँव की तरफ बढ़ता गया। मटरिंग, मसाजिंग हिज टेम्पर्स एंड किकिंग स्टोन्स एज ही वेंट। मटरिंग, मर्मरिंग, जैसे वो हल्की आवाज़ में, दबी दबी आवाज़ में अपने आप से बातें कर रहा हो। मसाजिंग हिज टेम्पर्स, अगेन अपने फेस, मसाजिंग रबिंग हिज टेम्पर्स, फेस को रब करते हुए, और जैसे जैसे चलता गया जो स्टोन्स रास्ते में आते हैं उनको किक करता हुआ। Soon Janko arrived at a pretty cottage adorned with the purple and the orange bougainvillea. जल्द ही वो एक छोटे से खूबसूरत कॉटेज के साथ जो कि पर्पल ऑरेंज कलर की बोगनविला की बेल से सजाया गया था। He straightened his jacket, उसने अपनी जैकेट सीधी की, then knocked on the door, और दरवाजे पे दस्तक दी। Eva was small like his wife but much older. ईवा क्या थी? उसकी वाइफ की तरह छोटे कद की, बट मच ओल्डर, लेकिन वो बूढ़ी थी। हर वाइट हेयर पॉटेड इन द मिडल एंड फ्लोइंग ओवर हर शोल्डर, उसके सफ़ेद बाल जो कि दरमियान से एक साइड पे मोड़े हुए थे एंड फ्लोइंग ओवर, उसके शोल्डर्स पे बिखरे हुए थे। मेड हर लुक लाइक अ लिटिल लाइक अ विच, बिल्कुल उसको ऐसा लुक दे रहे थे जैसे वो छोटी सी विच हो, कोई जादूगर नहीं हो। ऑल शी नीडेड वाज अ क्लोक एंड अ ब्रूम, अब उसे उस लुक को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक क्लोक मजीद चाहिए था और ब्रूम चाहिए था। क्लोक लूज ड्रेस जो कि जादूगरनियों ने पहना हुआ होता है टू कवर ऑन द शोल्डर्स, एंड अ ब्रूम टू कंप्लीट द पिक्चर, एक ब्रूम चाहिए था, झाड़ू चाहिए था, तो वो बिल्कुल विच दिखाई देती। शी नाउ अपीयर्ड स्माइलिंग इन द डोरवे, अब वो मुस्कुराती हुई सामने के दरवाजे पे खड़ी थी। कम इन जैंको, शी सेड जोवेली, उसने कहा खुशगवार अंदाज में, जोवेली चेयरफुली, अच्छे मूड में, उसने कहा कि आ जाओ जैंको, आ जाओ। ओपनिंग द डोर वाइडर, दरवाज़ा खोलते हुए। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़, क्या तुमने सरप्राइज़ दिया, क्या खुशगवार तुमने मुझे सरप्राइज़ दिया है। गुड इवनिंग शाम बहेर इवा, मम्बल जैंको, मम्बल टॉक इन लो वॉइस, आहिस्तगी से जैंको ने कहा। फॉलनली, अफसुर्दगी से, वो सैडली, अफसुर्दा सेड दिखाई दिया। इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल, हाँ काफ़ी वक्त हो गया है। येस अ लॉन्ग टाइम इंडीड, हाँ यकीनन बहुत ज़्यादा वक्त। एग्रीड ईवा, ईवा ने भी उसकी बात से राज़ी हुई, इतफाक़ किया। शोइंग हिम टू एन आर्म चेयर इन हर कॉजी लिविंग रूम, कॉजी कंफर्टेबल, अपने आरामदेह लिविंग रूम में उसने उसे बैठने के लिए आर्म चेयर दी। डिड यू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम विद योर वेजिटेबल पेज, क्या तुम्हारा वो वेजिटेबल पेज, वेजिटेबल गार्डन का, वेजिटेबल के फील्ड का जो मसला था वो सॉल्व हुआ। येस रिप्लाइड, जेंको ने जवाब दिया, हाँ हाँ, थैंक्स टू योर एडवाइस, तुम्हारी नसीहत का शुक्रिया। द बर्ड्स हैव स्टेयर्ड वेल क्लियर ऑफ द गार्डन एवर सिंस, उसके बाद से परिंदे जो हैं हमेशा गार्डन से दूर रहे हैं, मेरे बाग से दूर रहे हैं। गुड सैड ईवा, ईवा ने कहा बहुत अच्छे, विद अ काइंड स्माइल। एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, और आज मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। योर एक्सप्रेशन टेल्स मी देयर इज़ समथिंग ऑन योर माइंड जेंको, तुम्हारे जो एक्सप्रेशन हैं, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि आज भी तुम्हारे जहन में कुछ है, कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ जेंको। वेल देयर इज़ ईवा, हाँ बिल्कुल ईवा, ऐसा ही है। सेड जेंको, जेंको ने कहा भरते हुए कहा। गेजिंग एट द एम्बर्स इन द फायर, आग में जलते हुए कोयलों को देखते हुए। आई एम नॉट अ वेल्दी मैन, मैं एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ ईवा। आई हैव बेयरली इनफ टू फीड माई फैमिली, बमुश्किल मैं अपनी फैमिली का गुजर बसर करता हूँ। हाउ एवर आई सिंपली कैंट गो ऑन लाइक दिस, लेकिन ऐसा सिंपली मैं मज़ीद ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं चल सकता। गो ऑन लाइक वट, क्या मतलब है, किस जैसा, कैसा। आस्ट ईवा, ईवा ने पूछा, सेटलिंग डाउन, बैठते हुए। माई हाउस इज़ टू स्मॉल, मेरा घर बहुत छोटा है। क्राइड जेंको, जेंको चिल्लाया। द लैक ऑफ स्पेस इज ड्राइविंग मी मेड, अब जगह की कमी जो है वो मुझे पागल कर रही है। द चिल्ड्रन और नॉइजी, बच्चे जो हैं वो शोर करते हैं। माई वाइफ स्नोर्स एट नाइट, मेरी बीवी रात को हराटे लेती है। व्हेन कार्ट्स रंबल पास्ट ऑन द रोड, और जब रोड से कोई गाड़ी गुजरती है, कार्ट गुजरती है। द क्रॉकरी रैटल्स, तो क्रॉकरी जो है वो भी लड़खड़ाती है, खड़खड़ाती है उसकी आवाज़ से। एंड हाउ कैन आई लॉन्ग फॉर सम स्पेस एंड सम पीस, मुझे भी कितनी ख्वाहिश है कि कुछ स्पेस की, कुछ जगह ज़्यादा हो और सुकून हो। वेल आई नेवर एक्सक्लेम्ड ईवा, यू हैव अ लवली हाउस, ईवा ने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा क्योंकि तुम्हारा बड़ा खूबसूरत घर है।
येस येस एग्रीड जेंको, जेंको ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इट्स नाइस, अच्छा है, बट आई विश इट वर बिगर एंड क्वाइटर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा हो और ये बिल्कुल खामोशी वाला हो, खामोशी हो, वहाँ पे सुकून हो। लाइक मिहेल्स मैंशन डाउन द रोड, जैसा कि मिहेल्स का मैंशन बिग हाउस का बहुत बड़ा घर है। बट आई कुड नेवर अफोर्ड अ हाउस लाइक दिस इन अ मिलियन ईयर्स, लेकिन मैं तो लाखों सालों में भी उस जैसा घर अफोर्ड नहीं कर सकूँगा। मिहेल्स हाउस इज़ लार्ज आई मस्ट एडमिट, एग्रीड ईवा, ईवा ने कहा कि मैं मानती हूँ कि इसका घर बहुत बड़ा है, बट यू शुड बी हैप्पी वेयर यू आर, लेकिन जो तुम्हारे पास है, जहाँ पे तुम हो, तुम्हें इसके साथ खुश होना चाहिए। वट कैन यू डू फॉर मी ईवा आस्क्ड जेंको, जेंको ने कहा कि ईवा तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। हाउ कैन यू मेक माई लाइफ बेटर, तुम मेरी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकती हो। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। ईवा गैज साइलेंटली एट द फायर फॉर अ वाइल बिफोर टर्निंग टू फेस जेंको, ईवा साइलेंटली खामोशी से वो आग को घूरती रही जेंको की तरफ मुड़ने से पहले। यू मस्ट डू एग्जैक्टली एज आई से, शी सेड, डू यू एग्री, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी, क्या तुम इस बात से मुतफिक हो, राजी हो। श्योर सेड जेंको, जेंको ने कहा हाँ बिल्कुल। होप राइजिंग इन हिज आइज, उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड ईवा, ईवा ने कहा कोई भी क्वेश्चन तुमने नहीं करना, कोई सवाल मुझसे नहीं पूछना। येस विदाउट क्वेश्चन रिप्लाइड जेंको, जेंको ने कहा हाँ कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। वेल देन, अच्छा फिर, सैड ईवा, ईवा ने कहा, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे अच्छे से याद है, यू कीप अ काउ एंड सेवरल अदर एनिमल्स इन अ स्मॉल बर्न एट द बॉटम ऑफ योर गार्डन, तुम्हारे गार्डन के निचले हिस्से में एक स्मॉल बर्न है, एक छोटा सा फार्म है, जहाँ पे तुम एक काउ और इसके अलावा काफ़ी सारे एनिमल्स, जानवर होते थे। दैट्स राइट सैड जेंको, जेंको ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। लुकिंग अ लिटिल एस्टोनिश, थोड़ा सा वो हैरान नजर आया। वेल सेड ईवा, ईवा ने कहा ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो स्ट्रेट होम, मैं चाहती हूँ तुम सीधा घर जाओ, एंड मूव देम आर इन टू योर हाउस, और वो सारे जानवर जो है अपने घर में ले आओ। जेंको स्टेयर्ड एट हर डिसबिलीविंगली, जेंको ने उसे गैर यकीनी की कैफियत में घूरा, स्टेयर्ड घूरा, देखा, बट ही स्टटर्ड, लेकिन ही स्टटर्ड, उसने रुक रुक के बोलने की कोशिश की, स्टटर्ड स्टैमर्ड, नो बर्ड्स नो नथिंग, कोई लेकिन कोई ना तुमने नहीं करनी। सैड ईवा एब्रप्टली, ईवा ने अचानक कहा, यू प्रॉमिस नाउ गो, क्योंकि तुमने वादा किया था इसलिए अब जाओ। जेंको रोज स्लोली, जेंको आहिस्तगी से उठा। ही सेड नथिंग फर्दर, उसने मजीद कोई बात नहीं की, बट नॉडेड हिज हेड एंड लेफ्ट द कॉटेज, लेकिन उसने अपना सर हिलाया और कॉटेज से बाहर चला गया। मोनिका, एंटोन एंड लोना वर मोस्ट सरप्राइज व्हेन जेंको टोल्ड दैम, मोनिका, एंटोन और लोना बहुत ज़्यादा हैरान हुए जब जेंको ने उन्हें बताया, ऑन हिज रिटर्न टू वेट अ वाइल, अपनी वापसी पे कि थोड़ा देर इंतज़ार करें, वाइल बिफोर डिनर, डिनर से पहले, एंड स्कर्टल्ड ऑफ टू द बर्न, और स्कर्टल्ड मूव हरिडली, तेज़ी से वो उस छोटे से फार्म की तरफ चला गया। दे स्टूड एंड वॉच, वो खड़े रहे, उसे देखते रहे, एक घास दहशतज़दा खौफज़दा होके, एज ही ब्रॉट इन टू द लिटिल हाउस फर्स्ट द गीज, फिर जैसे ही वो छोटे घर में सबसे पहले गीज लेके आया, फॉलोड बाय द चिकन, फिर उसके बाद चिकन्स, देन द 2 गोट्स, फिर 2 गोट्स, एंड फाइनली द काउ, आहर पे एक काउ। दे हैव टू स्टे हेयर विद अस, अनाउंस जेंको, जेंको ने ऐलान किया कि अब हमारे साथ रहेंगे। ईवा टोल्ड मी टू डू दिस, ईवा ने मुझे ऐसा करने का कहा है। द चिल्ड्रन वर अम्यूज एंड एक्साइटेड टू बी शेयरिंग देयर होम विद द एनिमल्स, बच्चे बहुत हैरान हुए और वो बहुत खुश भी थे अपना घर एनिमल्स के साथ शेयर करने पे। बट मोनिका थॉट हर हस्बैंड हैड लेफ्ट हिज सेंसेस समवेयर ऑन हिज वॉक, लेकिन मोनिका को ये महसूस हुआ कि जैसे उसका हस्बैंड जो है अपने होशो हवास खो चुका है। फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक, द हाउस वॉज इन टर्माइल, हाउस घर में एक अजीबो गरीब सी कैफियत थी। टर्माइल कन्फ्यूजन, डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। एट नाइट जेंको स्नोरिंग वॉज द लीस्ट ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और रात को जो है उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं और भी बढ़ जाती थी जब जेंको जो है वो स्नोरिंग करता था। नो बडी गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट नॉइज एंड मूवमेंट इन द हाउस, और मुसलसल घर में शोर की वजह से और जानवरों एनिमल्स की जो इधर उधर हरकत थी, मूवमेंट थी, उससे कोई भी सो नहीं सकता था। वन मॉर्निंग आफ्टर पर्टिकुलरली नाइजी एंड द रेस्टलेस नाइट, फिर एक सुबह अगेन बहुत रेस्टलेस नाइट, बेचैनी और शोर वाली रात के बाद, जेंको रब्ड हिज आइज एंड अनाउंस, जेंको ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, आई एम गोइंग टू सी ईवा अगेन, मैं ईवा से दोबारा मिलने जा रहा हूँ। एट ईवाज हाउस जेंको हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स एंड वेप्ट, ईवा के घर पहुंचने पे जेंको ने अपना सर अपने हाथों में पकड़ लिया और रोने लगा। वाई आर यू आर पुटिंग मी थ्रू ऑल दिस, तुमने मुझे सब में क्यों डाल रही हो, इतनी मुश्किल में क्यों डाल रही हो। क्राइड जेंको, जेंको चिल्लाया।
द होल फैमिली इज अपसेट विद मी, सारा घर मुझसे परेशान है. वी कैन नॉट स्लीप एंड वी फाइट ऑल द टाइम, हम सो नहीं सकते और सारा वक्त लड़ते रहते हैं. द नॉइज इज डेफनिंग, ये इतनी ऊंची आवाज़, इतना शोर जो है, डेफनिंग अगेन लाउड इनफ, कि जैसे हमें अभी वो बेहरा कर देगा. हैव यू एवर केप्ट काउ, डॉग्स एंड अदर एनिमल्स इन योर रूम, क्या तुमने कभी अपने रूम में काउ, डॉग्स और इस तरह के दूसरे जानवर रखे हैं? इट्स हेल, टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जहन्नम बन चुका है. ईवा स्माइल्ड, ईवा मुस्कुराई. येस इट इज़ हेल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. ही सेड सॉफ्टली, उसने असली से कहा, नरमी से कहा. वेल डन, बहुत अच्छे जेंको. नाउ आई वांट यू टू गो स्ट्रेट होम, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सीधा घर जाओ. एंड मूव ऑल द एनिमल्स बैक टू द बैन, और तमाम एनिमल्स जो हैं दोबारा से उस फॉर्म में वापस रखाओ. नो वर्ड्स, जस्ट डू इट. अगेन कोई बात नहीं करनी, सिर्फ वैसे करो जैसे मैं कह रही हूँ. जेंको रिटर्न टू हिज हाउस एंड डिड एज ही वॉज टोल्ड, जेंको अपना घर वापस आया, बिल्कुल ऐसा ही किया जैसे उसे बताया गया था. ही, मोनिका एंड द चिल्ड्रन स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे क्लीनिंग अप द मैस मेड बाय द एनिमल्स, फिर उसने, मोनिका और बच्चों ने सारा दिन जो है, जो मैस, जो गंदगी जानवरों ने घर में डाली थी, वो साफ करते हुए गुजारा. आफ्टर द हाउस वॉज बैक टू नॉर्मल, और जैसे ही घर दोबारा से नॉर्मल रूटीन पे आ गया. जेंको स्ट्रेच आउट इन हिज आर्म चेयर, जेंको अपनी आर्म चेयर पे उसी तरह से बैठा. द चिल्ड्रन प्लेड नाइजली विद देयर टॉयज इन द वन कॉर्नर, और दूसरे कॉर्नर में बच्चे जो हैं अपने टॉयज़ के साथ शोर कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में खेल रहे थे. मोनिका क्लैटेड पॉट्स एंड पेन्स इन द किचन, और मोनिका बर्तनों के साथ किचन में लगी हुई थी. आह सैड जेंको, जेंको ने एक आह भरते हुए कहा. एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और सोचा, हाउ नाइस इट इज़, कितनी अच्छी बात है. द साउंड ऑफ माई वाइफ एंड द चिल्ड्रन इन द बैकग्राउंड, मेरे बच्चों और बीवी की आवाज़ें जो हैं बैकग्राउंड में, कितना अच्छा महसूस होता है. प्लेंटी ऑफ रूम टू, और कमरे भी बहुत ज़्यादा हैं. होम स्वीट होम, घर प्यारा घर. This was the reading of this unit, and now I'm going to explain the difficult words meanings to you. These are the meanings of difficult words or synonyms. The first word is adorn. Adorn means decorated, beautified, सजाया गया. Aghast, struck by horror and amazement. खौफ से, दहशत से हैरान रह जाना, दहशत ज़दा हो जाना. Amber, walk slowly, आहिस्ते से चलता हुआ. Ambers, स्मॉल पीसेस ऑफ बर्निंग कोल, कोल कोयले के छोटे जलते हुए टुकड़े. फॉरलर्नली, सैडली. जैंगलिंग, अ हार्श मेटेलिक साउंड, नागवार आवाज. स्कटर्ड, रेन हरिडली. टर्माइल, डिस्टर्बेंस. इरिटेबल, इजीली अनॉयड. ग्लूमी, सैड, अपसेट. So students, you have to do the reading of this unit, and you have to write these words meanings on your notebook. Till then, our next lecture. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.